हेलो हेलो हाय आई एम हर्षिता एंड हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था हमने। तो उसके हम एंड तक आ गए। एंड में मैं तीन टॉपिक्स कंप्लीट एक साथ ही करा दूंगी, स्टार्टिंग विद की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गेमीटोजेनेसिस and your menstrual cycle का overview. Then the three topics which are left, उसकी NCRT and NCRT के बाद important points. फिर पूरा चैप्टर सम अप कर देगी और मैं पूरी चैप्टर की वीडियो एक उसमें 1 घंटे की ऑलमोस्ट करके डाल दूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट्स एंड दिस चैप्टर, सॉरी मैं छोटी हो जाती हूँ। ओके, चलो हमें करना है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से स्टार्ट, ठीक है। अच्छा सॉरी, ओवरव्यू भी तो देना है। Here you go. Human reproductive system, starting with male reproductive system, comprises of testes, accessory ducts, gland, and external genitalia. Primary sex organ is testes, which produces male gametes known as sperms. Testes are situated outside the body cavity because they need less temperature, that is 2 to 2.5 degrees Celsius. Testes comprises of 250 compartments known as testicular lobules, which have highly coiled structures known as seminiferous tubules. Seminiferous tubules produces male germ cells and Sertoli cells. Male germ cells helps in the production of sperm. Sertoli cells nourishes the male germ cells. ठीक है। फिर आता है आपका interstitial cells or the lytic cell, which is the most important part in the male reproductive system, that is production of testicular hormone, which is known as androgen. Okay, फिर आता है आपका मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, रेडियस, डिफरेंशिया, एपिडर्मिस, जैसा डिफरेंस, ठीक है। और ओपन ये आपका बड़ा होता है बिकॉज यूरिन एंड सीमेन का सेम पार्ट होता है। देन योर पेन इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू which helps in the erection, the soft and the loose fold, the upper part is called as the foreskin. फिर आता है आपके मेल एक्सेसरी डक्ट, seminal plasma, prostate gland and bulbar urethra. Bulbar urethra का काम होता है in the lubrication of penis. Okay, this is all for the male reproductive system. Let's come to the female reproductive system. Female reproductive system comprises of ovaries, oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia, mammary glands. ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया आपका ओवरीज, 54 सेंटीमीटर की उसकी होती है, पेल्विक वॉल से सराउंड होती है विद सम टिश्यूज, एंड ओवेरियन स्ट्रोमा डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब ओपन, फेलोपियन ट्यूब में आपका ये पेरीफेरी टू यूट्रस तक होते हैं। Two parts, infundibulum, fimbriae. Infundibulum open into ampulla, ampulla into uterus. Fimbriae resembles to finger like. Finger like का काम क्या होता है? होल्ड करना। fimbriae का काम भी होल्ड करना होता है, कलेक्ट ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ ovum in the process after ovulation, ठीक है। यूट्रस बॉम्ब इन्वर्टेड पियर शेप की होती है, ओपन into narrow cervix, which is also known as cervical canal. The most important part is perimetrium, myometrium, endometrium. Same increasing order से peri outermost, myo middle, endo innermost, ठीक है। Endometrium goes few changes during the menstrual cycle, and your endometrium goes endo goes changes during the menstrual cycle, but myo goes changes during the childbirth, ठीक है। फिर आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पास मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, hymen and clitoris. Major, sorry. Mons pubis से start करता है। Mons pubis is the cushion like fatty tissues, ठीक है, outer most। फिर आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा इज द फ्लैशी फोल्ड। फिर लेबिया मेजोरा के नीचे आता है लेबिया माइनोरा। क्लिटरस इज द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है। देन आता है हाइमेन। हाइमेन इज नॉट hymen is usually told during the first intercourse, but it is not a reliable indicator of virginity or sexual experiences, जो कि often told हो जाता है while your sport
सडन फॉल और इंसर्शन ऑफ टैम्पूल्स। फिर आता है आपका मेमोरी ग्लैंड्स। Memory glands is also known as presses almost about fats. और भी चीजें होती है, some glandular tissues plus fat plus almost fat. 20, 15 to 20 memory lobes open the memory ducts, memory ambula, and lactiferous ducts. Lactiferous ducts is the place where the milk is sucked out. Yes, we have done with this. Then your गेमेटोजेनेसिस दो तरीके के होते हैं, मेल एंड फीमेल का अलग अलग होता है। मेल होता है स्पर्मियोजेनेसिस, फीमेल होता है oogenesis। स्पर्मियोजेनेसिस meiotic डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड। स्पर्मियोगोना 46 क्रोमोसोम, फिर दो में डिवाइड होता है 23 फॉर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन इनटू फोर स्पर्मेटिड। फोर स्पर्मेटिड लेड इनटू स्पर्म। Then your GnRH and Leydig cell. Leydig cell का मैंने बताया था testicular lobules. Androgen GnRH releases two type of hormones, LH and FSH. ठीक है? Luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone is responsible for primary, secondary, tertiary follicles and ठीक है। फिर अब आ जाता है शेप ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का डायग्राम ये रहा। इसको तीन चार, एक दो तीन चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, हेड, नेक, मिडल लेयर, टेल। पूरा इंक्लोज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके बीच में यहाँ पर हेड पे होता है एक्सोसोम प्रेजेंट, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। जिस फॉर्म में एक्सोसोम नहीं होता वो फर्टिलाइज नहीं कर सकती। Then your middle piece mitochondria होता है। Mitochondria is the powerhouse of the cell plus mitochondria is the powerhouse of sperm। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करती है एनर्जी देने में, स्विम करने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फीमेल वाले पे। ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस ओगोनिया मैंने बताया था, जिसमें गोनिया स्पर्मोगोनिया होंगे, उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे मेयोटिक डिवीजन से। प्राइमरी oocyte, प्राइम पोल प्राइमरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है। देन योर फॉलिकल्स में 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। देन न्यू थीटा को मेक सेकेंडरी फॉलिकल। द फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एज एंटम। बस ये याद रखना है। और देन इट ओपन्स इनटू, खुल जाता है बार बार, इट ओपन्स इनटू ग्राफियन फॉलिकुलर। ठीक है, ये एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर आ गया हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। फिर हमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ना है। चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका है द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। अब इसमें ये है कि जितने ओवम होते हैं वो बिफोर बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं, आफ्टर बर्थ अंडे नहीं बनते। स्टार्टिंग होती है मेनार्क से, एंडिंग होती है मेनोपॉज से। डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्रैम्प्स, पेन, पीरियड, ब्लड, सब कुछ डिफर फॉर्म होता है। मेनार्क एंड मेनोपॉज भी डिफरेंट होता है। बस 28 to 29 डेज की साइकिल होती है। क्यों होती है? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग की वजह से होती है। एलएच एंड एफएसएच आर द टू हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रीटेड, इसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। एलएच एंड एफएसएच हाई होते हैं ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, द 14 डे पीक पे होता है। बट न्यूट्रल फेज जो आपका सिक्रीटरी फेज होता है उसमें एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हाई होते हैं। तो मैंने बताया था ना, प्राइमरी फॉलिकुलर 60,000 to 70,000, दैट सेकेंडरी फॉलिकुलर एंड ग्राफियन फॉलिकुलर। तो ल्यूटरल फेज में क्या होता है कि ना, ग्राफियन फॉलिकुलर जो होता है ना वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ल्यूटरल फेज के बाद अगर स्पर्म नहीं आता फर्टिलाइज करने ओवम को, तो ल्यूटरल फेज जो होता है ना वो डीजनरेट हो जाता है और ब्लड फ्लो हो जाता है। 3 to 5 डेज की होती है ब्रेकडाउन जो रिलीज होती है थ्रू वजाइना, जिसके अंदर ब्लड प्लस टिश्यूज होते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया। देखो, ल्यूटरल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम, एसेंशियल एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तो आपको कहते हैं आपके मेनोपॉज। 50 years डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी प्लस 5 months ऑफ योर लैक्टेशन पीरियड में भी पीरियड्स नहीं होते, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, रुक जाती है। दिस वॉज ऑल वी हैव डिस्कस टिल नाउ। अब हमें करना है डिस्कस फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है,
चलो आओ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो मैंने ऑलरेडी 3 4 वीडियो में पढ़ा दिया था, तो मैंने बहुत तेज तेज बताया। अब करते हैं हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है। ड्यूरिंग copulation, coitus, semen is released by the penis into vagina. During the intercourse, semen is released by the penis into vagina. The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, enters in the uterus, finally reach the ampullary region of the fallopian tube. The ovum released by the ovaries are transported to the ampullary region while fertilization takes place. So, ये fertilization and implantation वाला टॉपिक क्या कह रहे हैं हमें कि semen में sperms कहाँ रीच करते हैं, ampullary रीजन में, प्लस ओवम को भी कहाँ भेज देता है, fallopian tube, ampullary region where the fertilization takes place. ठीक है। Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary region. This is the reason why not only copulation leads to fertilization and pregnancy. The process of fusion of sperms and ovum is called as fertilization. इस सबको पता है. During fertilization, a sperm comes in contact with zona pellucida, layer of ovum, and induces changes in membrane that blocks the entry of additional sperms. Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. Okay. Then secretion of acrosomes helps the sperm enter into cytoplasm and the ovum passes through the zona pellucida and the plasmid. ठीक है। ये क्या कह रहा है बेसिकली कि ना जोना पेलिसिडा इज दिस लेयर। ठीक है। स्पर्म स्विम कर रहा है, एक्रोसोम हेल्प कर रहा है उसको स्विम करने में, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया उसे हेल्प कर रहा है स्विम करने में, एंड एक्रोसोम जो है ना वो हेल्प कर रहा है उसे यहाँ फर्टिलाइज करने में। ठीक है। एक बार ये फर्टिलाइज हो गया, देन जोना पेलिसिडा मेक श्योर कि ये बंद हो जाए कि दूसरा स्पर्म आगे फर्टिलाइज ना कर पाए। ठीक है। ये स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेंगे अगर एक स्पर्म आकर फर्टिलाइज कर दे। ठीक है। फिर आगे एक्टोसोम हेल्प करता है उसको साइटोप्लाज्म में एंटर करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। This induces the completion of meiotic division of secondary oocyte. The secondary meiotic division is unequal, result in the formation of secondary polar body, a haploid ovum, ooid. ठीक है। Then it forms into zygote. अब zygote में कितने क्रोमोसोम्स होंगे बताओ। 46, क्योंकि 23 स्पर्म से आ गया और 23 ओवम से आ गया ना, zygote is 46 क्रोमोसोम डिप्लॉयड, 23 हैप्लॉइड होते हैं। One has to remember that the sex of baby has been decided at stage itself. ठीक है। Let's see. As you know, the chromosome pattern of human female is is XX and human male is XY. Therefore, all the haploid gamete produced by female has the sex chromosome X, whereas the male can be either X or Y. Hence, 50% sperms carries X, while other the 50% carries Y. After the fusion of male and female gametes, it could be either XY or XY, depending on whether sperm carrying X or Y. The zygote carrying X develops into female and XY develops into male. ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है. That is why scientifically it's correct to say that the sex of the baby is determined by the father, not by the mother. सो बहुत सारे रूरल एरियाज में फीमेल्स को क्रिटिसाइज किया जाता है कि बट लड़की तुम्हारी वजह से हुई है, बट दिस इज साइंटिफिकली सेड दैट sex of the baby is always decided by the father, not by the mother. ठीक है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ। Here.
ये आपका हो गया मेल, ये हुई आपकी फीमेल, ठीक है। मेल होता है एक्स वाई, फीमेल होती है एक्स एक्स। तो वो तो एक्स ही कंट्रीब्यूट करेगी। मेल के पास चॉइस है कि 50% स्पर्म्स उसकी एक्स होती है और 50% वाई होती है। तो या तो ये एक्स एक्स बन जाएगा या फिर ये एक्स वाई बन जाएगा। एक्स वाई हुआ तो मेल बन जाएगा, एक्स एक्स हुआ तो फीमेल हो जाएगा। जैसे ही स्पर्म आ गया ना जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में, वैसे ही सेक्स तो डिटरमाइंड हो गया कि ये स्पर्म अगर एक्स की हुई तो फीमेल बन गया, वाई की हुई तो मेल बन गया, ठीक है। इसमें मैंने मेन इंपॉर्टेंट बात बता दी है कि ये फादर डिसाइड करते हैं और वो नहीं करते, ठीक है। अब बाकी इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। ड्यूरिंग द meiotic division starts as the zygote move through isthmus of the ovida called cleavage towards uterus। फिर यहाँ मिलता है 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमेम। एम्ब्रियो जो होता है आपका वो 8 to 16 होता है, 8 to 16 वाला होता है। मोरुला 10 further blastomeria। अब इसकी लेयर्स होती है, ट्रोपोप्लास्ट आउटर मोस्ट, फिर आपका इनर 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 होती रहती है, ठीक है। फिर हम यहाँ आ जाते हैं, ट्रोपोप्लास्ट लेयर गेट्स अटैच टू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का ना बहुत कम है, एंडोमेट्रियम मैंने आपको लास्ट बताई थी, एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी चलती है, ठीक है। इन द इनर सेल must get differentiated as the embryo after attachment. The uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst. As a result, tropoblasts become embedded in endometrium of uterus. This is called as implantation. बेसिकली क्या होता है ना कि ये ट्रोपोब्लास्ट में ना वो होती है अटैच होती है। मैंने बता दी 8 to 6 में को मॉरुला कहते हैं, फिर ये ट्रोपोब्लास्ट में होती है एंड एंडोमेट्रियम में ये सब प्रेजेंट होती है। इसी चीज को एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म बाय मॉरुला, 8 to 16 मॉरुला हो गया, देन आपका ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो गया। ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड मतलब जुड़ जाता है वो एंडोमेट्रियम में ड्यूरिंग ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम में इंसर्ट हो जाता है। इसी इंसर्शन को कहते हैं इम्प्लांटेशन, which led in the pregnancy। ये देखो, इस वाला पेल्यूसिडा में हो गया आपका स्पर्म, वो हो गई, ठीक है। फिर जायगोट हो गया, ये आपका जो एम्ब्रियो, जायगोट के बाद बन गया आपका एम्ब्रियो। फिर ये आपका आ गया जायगोट मूव्स टू द इस्थमस। फिर 2, 4, 6, 8, 12, 8 to 16 वाले को कहते हैं हम मोरुला। मोरुला के बाद आपका आ गया, ये बन गया ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोपोब्लास्ट जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एम्बेड हो जाती है एंडोमेट्रियम इन द यूट्रस विच इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, ठीक है। आ गया हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस पे इट्स फोर लाइवलीहुड ऑफ हार्मोन हार्मोन चाहिए, ठीक। चलिए देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 3.6, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर प्रेगनेंसी एंड इम्प्लांटेशन भी स्टार्ट करते हैं। चलो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। फेरी वो मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा पार्ट है इसका, ऑलमोस्ट इक्वल ही है, जल्दी हो जाएगा।
Pregnancy and embryonic development after implantation, finger-like projection appears in the trophoblast is called as chorionic release. The finger-like projection in trophoblast are surrounded by uterine tissues and mammary gland. Chronic belly and uterine tissue become easily and joined firmly within. ठीक है, यहाँ पर आपका ये आ गया structure and function unit between developing embryo and maternal body is called as placenta जो बच्चा जिससे कनेक्टेड होता है एंड सारा न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन जो भी कुछ करता है वो प्लेसेंटा के थ्रू करता है. Placenta facilitate in the supply of oxygen, nutrients, removes waste, carbon dioxide, excretory waste. ठीक है. Produced by the embryo, the placenta is connected to embryo through an embryonic cord, which helps in the transformation of this. ठीक है. Placenta also acts. फिर यहाँ पर placenta acts as an endocrine tissue and produces several hormones. ये several hormones याद रखने हैं. HCG, HPL, human chorionic gonadotropin and human placental lactogen, estrogen, progesterone, etc. प्रेगनेंसी हार्मोन होता है एक आपका रिलैक्सन विच इज सिक्रेटेड बाय ओवरी. ठीक है. लेट अस रिमेंबर ये फुल फॉर्म ना याद रखिए. HCG HPL रिलैक्सन आर प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन ओनली ड्यूरिंग द पीरियड, सॉरी ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ठीक है. The level of other hormones like estrogen, progesterone, cholesterol, sorry, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds in maternal blood. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in mothers and maintenance of pregnancy. ये क्यों secret होते हैं बेसिकली कि ना चेंजेस जो प्रेगनेंसी में होते हैं ना बॉडी में उन सबको सपोर्ट करते हैं बेसिकली. ठीक है. Immediately after implantation, the inner cell mass embryo differentiate into an outermost layer. ये भी तीन layers हो गई आपकी बेटा. Ectoderm, innermost, then endoderm, then mesoderm. ठीक है. Mesoderm है middle between ecto and medo, सॉरी एंडोडर्म. इसको याद कैसे करेंगे. एक्टो बाहर के है एंडो बाहर के है. इससे करिए टी एंड डी से. टी पहले आता है मतलब टी आपकी आउटर मोस्ट है एंड डी अंदर पार्ट में आता है तो ये हो गया आपकी इनर मोस्ट. ठीक है. स्मूथ appear between these three layers to give rise to all the tissues organs in the adult. It need to be noticed that I have to tell me to give rise to all the tissues. What's the major reason human pregnancy lasts for 9 months? पता है? Do you know for how many months of pregnancy in dogs, cats and सबसे ज़्यादा elephants की होती है longest. In human being, after 1 month of pregnancy, the embryo heart. See, ये important है. ये ना लिखना है. ये साइड में लिखना है. आप लोग भी लिखो अपनी एनसीईआरटी में ही लिख लो. याद रहेगा. फर्स्ट मंथ में सबसे पहले ना हार्ट ही फॉर्म होता है. हार्ट. By the end of second के एंड में that is your 12 weeks फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सेकेंड के एंड 12 वीक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप कुछ भी याद कर सकते हो. मेजर ऑर्गन फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल लिम्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर वेल डेवलप. फर्स्ट मूवमेंट आपकी होती है 5th मंथ पे. बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी हेयर्स आ जाते हैं. आईलिड्स आ जाती है. आई लैशेस आ जाती है. ठीक है. और 9 मंथ में बच्चा तैयार हो जाता है डिलीवरी के लिए. ये भी डिपेंड करता है कुछ लोगों को जल्दी और लेट भी हो जाती है बट 9 मंथ इज द सेफेस्ट टाइम.
ओके हम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं इस चैप्टर के दैट इज पार्चुएशन एंड लैक्टेशन ओके द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्टार्ट करते हैं द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months which is called as the gestation period ठीक है vigorous contraction of uterus at the end of pregnancy cause expulsion delivery of fetus this process is called as parturition चाइल्ड बर्थ होता है parturition और मिल्क होता है लैक्टेशन ठीक है पार्चुएशन ड्यूस कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म द signals for parturition originated when the fully developed fetus and the mild uterine contraction which is also known as fetal ejection reflex ठीक है और this trigger releases oxytocin and maternal pituitary oxytocin act on uterine muscles cause strong uterine contraction. इसके लिए ऑक्सीटोसिन ना हेल्प्स इन द प्रेगनेंसी वो और यूट्राइन स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करता है ठीक है reflect between uterine collagen releasing a strong contraction this leading to expansion of baby and this is how baby comes out partition is the process ठीक है soon after infant is delivered the placenta is also expelled out of the uterus what do you think of the intelligence of baby? The mammary gland of female undergoes differentiation during pregnancy and start producing milk. Production of milk towards the end of pregnancy. This process is called as lactation. The process this helps the mothers in the feeding of newborn. जो मम्मा का मिल्क होता है ना स्टार्टिंग वाला उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है which contains several antibodies absolutely essential for the newborn babies. Breastfeeding during the initial stage of infant is recommended by the doctors for upbringing of a healthy baby. ठीक है This is all for human reproduction. पूरा chapter complete हो गया है. You can see पूरे chapter की हर एक line मैंने डिटेल में समझाने की अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी है प्लीज ठीक है एक बार ये पढ़ लेना अगर आप चाहते हो तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी विद समरी एंड एक्सरसाइजेस ओके सो दिस वाज ऑल फॉर ओके दिस वाज ऑल फॉर द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें हर एक टॉपिक को क्लियरली बताया गया है आप लोग अपने फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा कुछ नहीं समझ में आया हो या फिर कोई प्रॉब्लम या मैं कुछ अपनी तरफ से जो इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ प्लीज 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 गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक एक कमेंट जरूर करना कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस स्टे ट्यून्ड विद मी हर एक चैप्टर फ्रॉम 11 12 बायो का कंप्लीट कराऊंगी okay this is all for this this was about the okay okay we'll see you in the next chapter bye